नमस्कार, भारत एट कान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। फ्रांस के कान में लगा है सितारों का मेला। दुनिया भर के फिल्मी कलाकार कान पहुंच रहे हैं। कौन से वो सितारे हैं जो रेड कारपेट पर नजर आ रहे हैं? साथ ही मां सरस्वती, ज्ञान, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती यंत्र पर आधारित भारतीय पवेलियन में किन मुद्दों पर हो रही है चर्चा, बताएंगे आपको अगले आधे घंटे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। भारत समेत दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री को लगता है कि उनकी फिल्मों का संरक्षण हो, लिहाजा संरक्षण के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है और साथ ही उसका संग्रह, उसकी बहाली और उसकी प्रदर्शनी पर काम होना चाहिए। भारतीय पवेलियन में इस विषय पर भी चर्चा हुई और दुनिया भर के फिल्म मेकर्स इस सत्र में मौजूद रहे। क्या कुछ मंथन हुआ इस सत्र में, आइए आपको दिखाते हैं। We want to really utilize this digitization to be able to showcase the films. In our case, where we have gone ahead and done the preservation and restoration, the films have not even been given by the original content owners. They have been given by, we picked it up from some cinema halls where they were lying as a trash. Somebody rightly gone ahead and did their best, and as I told you, it's 250,000 film reels still alive in our this thing, and about 60,000 still waiting, and we got to keep collecting more because we're building a capacity of 2 lakh. I mean, we can, if we are not finding, we can offer it to people outside as well. I mean, that's one good thing which the government has done, that have an infrastructural capacity to preserve. We also really urgently need to train young people like you all to work with production, not just with the film itself, but with the machines, because if we end up with all the films in perfect shape, ethically restored, and we don't have anyone who knows how to play them anymore, it'd be completely useless. We used to do workshops all around India. At the NFI also we did the workshop. What is so beautiful about India is that every region seeps in culture, and we've got to recognize that region. I mean, in Indian cinema is not Hindi cinema. Indian cinema is cinema of 55 languages which we make, and that's the unique beauty about India. All the great new wave films have been supported by the government, and and look at the kind of experimentation which happened in those. It's not easy to keep going labs with photochemical equipment like printing and processing, but of course I think it's important. It's even a key factor for archives. If we just switch a bit the topics on conservation, we discover how to preserve, to conserve the picture on film is important, because the film stock is the safer medium that today we know. After 92, the thing is that the local studios doesn't have the capacity to commercialize and doesn't have the financing to restore the films. So we have to have them to keep the films alive. We are using state money to finance these private films, but we are making a deal. Our restoration cost is an investment, and we are getting the distribution rights worldwide, and we are integrate these films in our catalogs. भारत में कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा है। कितनी संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं, खासकर स्क्रिप्ट की, एडिटिंग की और शूटिंग लोकेशंस की अगर बात की जाए, उस पर एक सत्र हुआ। भारत के कुछ युवा कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो इस सत्र में मौजूद रहे। जाने माने चेहरे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। I'll be very honest, I've been doing this for a while, and at this point it's just about what will get the most views. It's as simple as that. I don't think content creation is an easy job, and you only know that when you do it. Especially in the long term, when there's so many reinventions involved, you do whatever's best for views and money, always, and that's how you'll survive. And it's actually a survival game much more than it is a growth game. I mostly do observational comedy, so I try to just pick out experiences that I go through and exaggerate a little bit, add a little masala tadka to it, package in a different way, and
throw it out there. But it's mostly what happens to me. I pull from personal experiences, but I exaggerate it a little bit because, for comedic effect and for the algorithm. So, yeah, that's how I do what I do and pick my characters. I mostly attack my mom a lot, but she's really not anything in the way that I portray her. It's actually really sweet and really chill. And sometimes when I'm doing the boom thing, and she's like, I never do that. I'm like, I know, but it's not fun if I'm just having an open conversation on the internet about how bacha tu theek hai. So, that's how I pick my characters. I think the oldest memory I have of this festival is, watching it on television when Aishwarya, Vidya Balan, Malika Sherawat would walk the carpet and be on the news all the time. And I remember just being so in awe of, this global platform. And it was the beginning of it all, I think. I remember Indian celebrities just doing that global thing for the first time. Every year we wait for these moments that who's going to do what and which films are you watching, which, screenings are you attending, all of that. So I walked my first red carpet yesterday, which was unbelievable and incredible, and I had goosebumps. I still have it. It is definitely a dream come true. I feel like when it comes to Bollywood, I started doing videos on advertisement and jingles, so I feel like that was very different, and it was not it's not ever like a proper dancing routine because I'm not a proper professional dancer. So it started with just having fun. Just keep your phone, turn it on, and just do whatever you feel like doing. Choose different angles, do some fun steps, and just enjoy. Because once you start getting too technical about the steps and the moves, I think it gets too much. And I'm not, again, like a professional dancer, so it takes a lot to come up with a very funky step or something. But I've been dancing since a while, just having fun. So I feel like it comes naturally for me. फिल्मों की शूटिंग के लिए भारत दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। वो इसलिए क्योंकि भारत में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक से बढ़कर एक लोकेशन है। भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य की सरकारों ने बनाई फिल्म नीतियां हो, चाहे भारत सरकार की फिल्मों को आगे बढ़ाने को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम की पॉलिसी हो, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो दुनिया भर के फिल्म मेकर्स को भारत की ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, महाराष्ट्र की अगर बात करें, वो किस तरीके से फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए फिल्म लोकेशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं 76वें कान फिल्म फेस्टिवल में, आइए आपको सुनाते हैं। कान में भारत की कोशिश है कि दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री को भारत की ओर आकर्षित किया जाए। भारत के तमाम अलग अलग राज्यों में फिल्म नीतियां बनाई गई हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई ऐसी फिल्म डेस्टिनेशंस हैं जहां पर अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं और फिल्मों की शूटिंग हो सकती है। भारत की कई फिल्मों की शूटिंग वहाँ हो चुकी है। कई दुनिया भर की कई और फिल्मों के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स भारत लगातार आ रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा भारत में डेस्टिनेशन एक्सप्लोर हो, ये बताने की कोशिश भी कान में भारत इंडिया पवेलियन में कर रहा है। एक सत्र आयोजित हुआ, बहुत महत्वपूर्ण सत्र था, और उस सत्र में महाराष्ट्र की कल्चर मंत्रालय की अगर बात की जाए तो उसके सेक्रेटरी विकास खाड़गे जी मौजूद थे और साथ साथ पूजा शर्मा मौजूद थी जो सिक्किम फिल्म बोर्ड की चेयरमैन है। सबसे पहले विकास जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। सर, महाराष्ट्र तो फिल्मों के मामले में देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा एक हब है, लेकिन हमारी कोशिश ये है, भारत की कोशिश ये है कि फिल्मों का जो डेस्टिनेशन है दुनिया भर का वो भारत बने। लोकेशंस के लिए क्या कुछ बताने की कोशिश उस सत्र में जिसमें आप मौजूद थे? आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत में बहुत ही पोटेंशियल है कि दुनिया के अच्छे अच्छे फिल्म्स जो है बाकी देशों के, वो भारत में हम बना सकते हैं और बनाना शुरू भी हो गया है। जैसे मैंने पैनल डिस्कशन में भी कहा कि स्लम डॉग मिलियनेयर जो है, जिसको अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो वो तो मुंबई में बन गया था। मुंबई के लाइफ पे है और मुंबई के लोकेशन पे भी है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र एज यू नो कि मुंबई में तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत मुंबई से हो गई है। दादा साहेब फाल्के, जिसे हम फादर ऑफ सिनेमा बोलते हैं, वो तो मुंबई के थे। तो लोकेशन, इफ़ वी टॉक अबाउट लोकेशंस, वी हैव एक्सलेंट लोकेशंस अवेलेबल इन महाराष्ट्र। उसमें बहुत सारे नेचुरल लोकेशंस है। महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर का सी कोर्स है, तो उसमें वेरी ब्यूटीफुल बीचेस आर देयर, तो उसमें शूट हो रहा है और हो सकता है। महाराष्ट्र में हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत है। महाराष्ट्र हैज़ अ ग्रेट हिस्ट्री। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के हैं, तो इनके मोर देन 350 फोर्ट्स है, तो ये इसके बारे में भी अच्छे लोकेशंस है।
महाराष्ट्र में काफ़ी रिलीजियस टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस, अगैरीज, जैन टेम्पल्स, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, ऐसे ब्यूटीफुल लोकेशंस भी महाराष्ट्र में हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी इज़ अ सुपर्ब इन महाराष्ट्र। आई वॉज अर्लियर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट ऑल्सो। So Maharashtra में there are 6 national parks, 6 tiger reserves, more than 50 wildlife sanctuaries, and biodiversity, in biodiversity Maharashtra is very rich. जैसे सह्याद्री एरिया आपने अगर ले लिया, it is called as hotspot of biodiversity. UNESCO has recognized that. तो इसके बारे में भी अच्छे अच्छे लोकेशंस महाराष्ट्र में उपलब्ध है। महाराष्ट्र में इट इज़ अ वेरी ह्यूज जियोग्राफिकल एरिया, जैसे मोर देन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर महाराष्ट्र का एरिया है जो 6 रीजन में बटा हुआ है। तो हर एक रीजन में अलग अलग इसकी एक खासियत है। जैसे मराठवाड़ा जो है वहाँ ड्रॉट प्रोन एरिया है, वहाँ कुछ फिल्मों में ड्रॉट एरिया का जिक्र रहता है और उसमें लोकेशंस उनको लगते हैं। विदर्भ एरिया में अच्छे फॉरेस्ट एरिया है और सह्याद्री एरिया कोंकण एरिया में है। सो हर एक रीजन में उसकी अलग अलग खासियत है और उसके अकॉर्डिंगली महाराष्ट्र में शूट बन सकता है। सर अलग अलग रीज़न की खासियत होती है, लेकिन मैं महाराष्ट्र से थोड़ा बाहर निकलना चाहूँगा। ना सिर्फ महाराष्ट्र, चूँकि आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और हर राज्य अपनी अपनी फिल्म नीतियाँ बनाता है फिल्मों को आकर्षित करने के लिए। जिस तरीके से कान में अलग अलग राज्यों में जो भारत के अलग अलग राज्यों में नीतियाँ बनी हुई हैं, तमाम उन बातों को भी दर्शाया जा रहा है। आपको लगता है कि रीजनल लेवल में क्या खासियतें हैं वो बताने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कान साबित हो सकता है? यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकेशंस एक पार्ट है, बट हमें वी हैव टू सी कॉम्प्रिहेंसिवली कि लोकेशन शूट के बाद और क्या है, तो उसमें पॉलिसी का बहुत महत्व रहता है। तो महाराष्ट्र में जो है पॉलिसीज़ में ऐसी गुड इकोसिस्टम क्रिएट करे, इस टाइप की हमारी पॉलिसी है और हम उनको नया भी पॉलिसी हम ला रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई शूट करना चाहता है, उसके अलग अलग परमिशंस लगती है, तो हमने सिंगल विंडो सिस्टम किया है, तो प्रोड्यूसर को अलग अलग परमिशंस के लिए इधर उधर भागना न पड़े। तो सिंगल विंडो सिस्टम हमारे यहाँ है। महाराष्ट्र में गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है। महाराष्ट्र में वी हैव 2 फिल्म सिटीज़ है, मुंबई में है फिल्म, वेरी गुड फिल्म स्टूडियोज़ है, तो जिसमें रीजनल मूवी के लिए कंसेशन भी हम देते हैं। महाराष्ट्र में जो रीजनल हमारे मराठी मूवीज़ जो बनते हैं उसको हम कुछ इंसेंटिव भी देते हैं महाराष्ट्र में, जो अब एंड वी आर वेरी ओपन टू दैट। जहाँ कान में आने के बाद हमने देखा कि बाकी कंट्रीज़ में अलग अलग नीतियाँ है, पॉलिसीज़ है टू अट्रैक्ट फॉरेन फिल्म्स शूटिंग के लिए, तो वी विल डेफिनेटली थिंक ऑन दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पॉलिसी है, जैसे 30% अगर फॉरेन फिल्म इज शूटेड इन इंडिया तो उसको 30% उसको रीइंबर्स किया जाता है। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू वर्क ऑन दैट। बिल्कुल सर, नॉर्थ ईस्ट को भी शामिल किया जा रहा है इस बार, और नॉर्थ ईस्ट को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी लोकेशंस हैं जो आज बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। सिक्किम फिल्म बोर्ड से पूजा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा जी, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए, हमने देखा एक पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर था, सिक्किम के बारे में बताया गया, मणिपुर के बारे में बताया गया। कैसे देखें नॉर्थ ईस्ट कितना खूबसूरत है, और ख़ासकर कान में आज हम दुनिया भर के फिल्म मेकर्स को बता रहे हैं कि भारत की डाइवर्सिटी किस तरीके से है। सर्वप्रथम तो मैं जो ये नॉर्थ ईस्ट का जो जितने भी हम रिप्रेजेंटेटिव थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव में आज हम यहाँ आके कान में अपने स्टेट्स को यहाँ पे हम मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो ही बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और अब देखा जाए तो भारत में हमेशा वेस्ट को या साउथ को या आप देखो माउंटेन्स में देखो तो ऊपर नॉर्थ इंडिया को फोकस किया है हमेशा, पर भारत में ऐसी भी जगह है जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, अनडिस्कवर्ड, या फिर ऐसे सुंदर सुंदर जगह। और सिक्किम खासकर की प्राकृतिक जो सुंदरता है सिक्किम में, शायद वो और जगह से हटके है। मैं ये नहीं बोलूँगी और जगह नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स भारत ही इतना सुंदर जगह है कि मतलब एवरी प्लेस, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन चार्म, ओन ब्यूटी, अपनी अपनी सुंदरता और खासियत है। पर सिक्किम में क्या है कि आप देखो ये नेचुरल फिल्म लोकेशंस
आपको वहाँ मिल सकता है, जैसे कि आपका स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, वैलीज है, रिवर्स, वाटरफॉल्स, डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स है, और साथ साथ में आपके जो मतलब हर चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगा। पर हाँ कि जैसे महाराष्ट्र अभी सर ने बताया वो वैसे उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो एटलीस्ट सिक्किम गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट किया है, अभी हमने ये सिक्किम फिल्म बोर्ड 2020 को कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसके बाद जिस तरीके से हमने काम किया है, हमने 67 नेशनल फिल्म अवार्ड एज अ मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट भी रिसीव किया था। सो उसका मतलब ये है कि सिक्किम बहुत तरक्की कर रहा है। हाँ, एज अ लोकेशन आप देखो तो 100 फिल्म लोकेशन हमने सेलेक्ट करके भारत में हर एक जगह में जाके मैं बताती हूँ ऐसा है। तो अभी आप देखो तो इस साल भी काफ़ी फिल्म्स आए शूटिंग करने के लिए, और फिल्म मेकर्स को बस पहले ये था कि बहुत दूर है, पर अब हमने ट्रांसपोर्टेशन और कम्यूटिंग में भी हमारा अपना खुद का एयरपोर्ट आ गया है, पाक्योंग एयरपोर्ट। सिक्किम काम कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट काम कर रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में जो संभावना है उसको अब दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। कान एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जहां पर तमाम राज्यों में जो काम हो रहा है फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए वो यहां पर रखने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र किस तरीके से फिल्मों को लेकर काम कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की अगर बात की जाए तो उसकी लोकेशंस किस तरीके से महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आकर यानी कि कान में आकर जो फिल्म मेकर्स हैं दुनिया भर के उनको बताया जा रहा है। कैमरामैन इलांगोवन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज का। वैसे तो भारत की 4 फिल्में हैं जिनको आधिकारिक तौर पर कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए चुना गया है, लेकिन भारत की क्षेत्रीय भाषाओं की कई फिल्में ऐसी भी हैं जो सामाजिक संदेश देती हैं। तमिल भाषी एक फिल्म है डू ओवर जो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। उसकी स्टार कास्ट जो है, उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर जो हैं वो भी कान में मौजूद हैं। कान में क्षेत्रीय भाषाओं की उन फिल्मों की भूमिका कितनी है जो सामाजिक संदेश देती हैं, हमने उस फिल्म की कास्ट से बातचीत की। कान में सामाजिक मूल्यों की फिल्में भी आई हैं और उनके कुछ पोस्टर्स जो हैं वो भारतीय पवेलियन में रिलीज हुए हैं। साथ साथ वो फिल्में के प्रोड्यूसर्स व उसके एक्टर्स जो हैं वो भी कान पहुंचे हुए हैं भारत से। हमारे साथ डू ओवर फिल्म एक फिल्म है जो नशे के खिलाफ एक बड़ा अच्छा सामाजिक संदेश देती है। एक व्यक्ति है, उसकी पूरी कहानी है, किस तरह की वो फिल्म है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शार्वी हैं, राइटर प्रोड्यूसर हैं। शार्वी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या उद्देश्य इस फिल्म के पीछे और क्या इसकी कहानी? अच्छा, कहानी मतलब नशे में इफेक्ट हो रहा है कितने लोग हम सबको मालूम है। स्पेशली मैं तो चेन्नई से हूँ, लेकिन मूवी तो बना रहा है तमिल लैंग्वेज में, लेकिन चेन्नई केरला में आप सबको पूरे देश को मालूम है शराब कितना पी रहा है ओकेशनली एंड फेस्टिवल टाइम। सो मुझे मालूम है कितना लोग, मेरा दोस्त लोग, मेरा पहचान वाले लोग, कितने लोग शराब के बारे में इफेक्ट हो रहा है। मतलब सुनिए, शराब मतलब कम लोग पीते हैं, ऐसे मेडिसिन पी रहे हैं, कम लोग ऐसे टाइम पास पी रहे हैं, कम लोग ऐसे ओकेशनली फंक्शन पार्टी सब जगह में पी रहे हैं। लेकिन मेरा सब्जेक्ट क्या है कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर वो तो एक डिसीज है, वो तो एक हेल्थ इश्यू है। वो हेल्थ इश्यू शराब पीने वाले को मालूम नहीं। वो क्या, इसका इश्यू क्या है कि ये आदमी को उसका मन, ब्लड, बॉडी, दिमाग सब पूछेंगे मुझे शराब दे दो, मुझे शराब दे दो। सब लोगों को तो 7 बजे में हो जाएगा। सब लोग, हम सबको मालूम है सुबह 10 बजे शुरू करेंगे। ये है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। मैं ये नशे का ये डिसीज वाला पेशेंट का सब्जेक्ट बनाया। प्रोड्यूसर है फिल्म के सारावन सर, ये जानना चाहेंगे कि ये एक बड़ा सोशल मैसेज है और कान में इसको लाना, क्या इसका उद्देश्य? Yeah, you wonderful Kelvi, wonderful message. Actually, that movie is my director's, my hero is my close friend. The one time is a story subject tell me, then I am very interested. Commercial, I make another subject, love subject, so many story. This one is the only message. Some people, so many people from India, alcohol take it, so suffering. So I am very interested. I put the money.
मानव हमारे साथ हैं और इस फिल्म में उन्होंने काम किया है। मानव एक्टर हैं और मानव, कितना बड़ा चैलेंज था, सोशल कॉज की एक पूरी फिल्म थी और उसमें आपको वो रोल करना था, कितना बड़ा चैलेंज सबसे पहले थे और जब वो कर लिया है उसके बाद आप कान पहुंच गए। पहले शाबरी साहब ने मुझको ये मूवी का वो सब्जेक्ट बताया था, उसी समय मैंने सोचा कि बाबरे ये तो बड़ा रिस्क होगा, बहुत होमवर्क करना पड़ेगा और इसलिए हम दोनों सर ने हमने बैठ के बहुत सारा कॉन्वर्सेशंस किया, होमवर्क किया और ये जो इस मूवी में मेरा कैरेक्टर का नाम है शिवा और शिवा का मैनरिज्म, शिवा क्या क्या करना है, वो पीने के बाद क्या क्या उनका वो क्या बोलता है वो कैरेक्टरिज्म, वो कैसा होता है, वो सब करना कैसे करना है, वो सर ने मुझको बताया था पहले से ही और मुझको भी थोड़ा होमवर्क करना था और मैंने बहुत ही किया, लेकिन बहुत से चैलेंजिंग, बहुत बड़ा चैलेंज था मुझको ये कैरेक्टर करने में। ये कैरेक्टर को जब करता है कोई आर्टिस्ट तो उसको जीना पड़ता है उस कैरेक्टर में। आपने अपने आप में उस कैरेक्टर को कैसे ढाला? मुझको कम से कम 2-3 महीने हो गया ये जो कैरेक्टर में आने के लिए, इसलिए मैंने सर से बहुत डिस्कस किया और वो शिवा का कैरेक्टर मैंने अपने आप मेरे अंदर वो डाला और शूटिंग टाइम में वो सब ठीक हुआ बाय गॉड्स ग्रेस। एक चीज़ और कि क्या आपको लगता है ये समय है सोशल कॉजेज़ की मूवीज़ जो हैं वो ऐसे कान हो, चाहे तमाम दुनिया के अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स जो हों, ऐसी मूवीज़ पर अब काम होना चाहिए और वो यहाँ तक और आनी चाहिए जो बन रही हैं? जब ये सब्जेक्ट के बारे में सोचा उसके बाद ये सब्जेक्ट हमने शूट किया, उसमें शूट करने के टाइम में आप सोचिए एक शराब पी के उसका एक्सट्रीम तक गया वो हीरो, उस घर पे एक शराब के नशे में जी रहा है, वो हस्बैंड को कैसे संभालूंगा, वाइफ, वो बेटी है, बेटी को मालूम ही नहीं था उसका फीस कब भरना है, उसका डॉक्टर के पास जाना है, ये सब छोड़ के फर्स्ट प्रेफरेंस जिंदगी में शराब को दे रहा है। ये जैसा आदमी का लाइफ का सिचुएशन शूट किया, उसके बाद हमने ये मूवी फिल्म फेस्टिवल सर्कल में इतना पसंद आया, 100 अवार्ड्स हमने जीता। द रीज़न हर फेस्टिवल में फेस्टिवल का लोग, जूरी, फेस्टिवल डायरेक्टर, सब लोग पिक्चर देखने के बाद मुझे फ़ोन करके बताया, मेल किया, भाई सर एक्चुअली ये मूवी का कैरेक्टर मेरा एक दोस्त है, मेरा फैमिली मेम्बर है, क्योंकि हर फैमिली में कोई ना कोई एक शराब के नशे में अफेक्टेड फैमिली मेम्बर होगा। दैट पोर्शन हेल्प्ड आवर मूवी वेरी मच। एंड बात यह है कि ये 100 अवार्ड्स के बाद अमेज़ॉन जैसा लेजेंडरी OTT प्लेटफॉर्म हमारा पिक्चर खरीद लिया। हमने भी सोचा भी नहीं था कि हमारा पिक्चर, हमारा नाम, हमारा डू ओवर अमेज़ॉन में स्ट्रीम हो जाएगा, अमेज़ॉन का लोगो हमारा टाइटल में आएगा। लेकिन बात यह है कि क्या मैंने ये पिक्चर में बनाया, नेवर गिव अप, स्ट्रगल, वर्क हार्ड, अचीव योर गोल, वो मैंने करके दिखाया। अभी ये छोटा प्रोजेक्ट करके 100 अवार्ड लेने के लिए 8 महीना लगा। 8 महीने के बाद अमेज़ॉन ने लिया। अभी कैन फिल्म फेस्टिवल में हम खड़ा है, हमने सबमिट किया लेकिन फेस्टिवल में हमको एंट्री नहीं मिला। बात मतलब सोशल अवेयरनेस मूवी के लिए कैन के लिए बड़ा बड़ा कंपटीशन होगा, मे बी दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट हमको मिला अवार्ड रीजनल कैन्स फिल्म फेस्टिवल से, बेस्ट सोशल अवेयरनेस अवार्ड मिला। एंड ये इधर आने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। बात यह है कि हमने बहुत सारे लोगों को मिला पिक्चर खरीदने के लिए, नया पिक्चर शुरू करने के लिए, नया क्या क्या करना है, सोशल अवेयरनेस में नेक्स्ट पिक्चर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमको एक बड़ा मौका मिला। तो बिल्कुल सामाजिक कॉज की जो मूवियां हैं वो भी जो है कान में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, उसको बनाने वाले लोग भी हैं। और जिस तरीके से इसका डू ओवर की बात की जाए, डू ओवर एक वो कहानी जो एक शराब बहुत ज़्यादा पीने वाला एक व्यक्ति है और उस तरीके के लोग समाज में लगभग कई परिवारों में पाए जाते हैं और किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, ये तमाम चीज़ों को इस फिल्म में ये पूरी कास्ट है, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, इन्होंने लाने की कोशिश की है। कैमरामैन कुलदीप के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, कान। तो भारत एट कान में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे 76वें कान फिल्म फेस्टिवल की हलचल को लेकर और बताएंगे आपको भारतीय पवेलियन में किन महत्वपूर्ण विषयों पर हुई है चर्चा। फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुलदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।